Hello everybody, welcome to the next tutorial. In the previous lecture, we saw the differences between the public versus private network. I told you that whenever we have to work on homogeneous protocol and we require dedicated services, we all go in for the private network. But whenever we want to go for a heterogeneous kind of protocol support, when the cost of the service is you want to keep cost of service as low, then we go for the public networking. So the next topic is uh, public network service selection. So what type of protocol we should choose and why we should choose, we'll be studying all the topics here. Okay, we may use one or a combination of more than one. So first of all, why do we need a private line? Why do we need a private line? This point can also be read as advantages of private as compared to public. कि हम private को क्यों prefer करेंगे? ये rather जो भी हमने private networking के points पढ़े हैं, तो जो private के advantages हैं, अब जो left hand side से अगर private वाले points लेंगे तो भी इसका यही reply बनेगा. But in the nutshell, crux, this is given here. So whenever you go for point-to-point connectivity, जब भी हमें दो nodes के बीच में point-to-point connectivity करनी हो, so we go for a private. Whenever there's a point-to-point connectivity, all right, you go for a private line. When the average link utilization is higher, एक link पे average utilization हमारी अगर higher है, it has to be more than 30%. Okay, average utilization during the busy hour. ठीक है, during the busy hour अगर वो 30% से ज़्यादा है, तो हम prefer करते हैं कि हम private line पे जाएं. और जब हमने स्टार टोपोलॉजी बिल्डअप करनी है तब भी हम प्राइवेट लाइन प्रेफर करते हैं. ये भी एक पॉइंट हो गया. जब हमने वॉइस, वीडियो और डाटा को एक सर्किट में इंटीग्रेट करना तब भी हम प्राइवेट लाइन यूज करते हैं. जब हमारे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर कांस्टेंट, दे आर कांस्टेंट बिट रेट. माय ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कांस्टेंट बिट रेट, CBR. Very important point. When my traffic characteristics are constant bit rate, that means my traffic is varying at a constant rate, then we go for a private line. When a consistent quality of service is required, आपकी quality of service ये नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा high होगी और कभी बहुत ज़्यादा कम होगी. आपकी requirements are mostly consistent every day. Okay, जब आपको consistent quality of service चाहिए, तब भी हम private line पे जाएंगे. So these are 6 attributes why we should go in for a private line. We go to the next topic. Now, next is why do we require X.25 services? देखो ये जो points है ना सारे, अभी पीछे हमने tables किए थे दो comparison X.25 versus ATM versus that. तो जो X.25 वाले points हैं उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. Okay? जहां जहां पे वो yes होता है तो वो जो जो चीजों को support करता है और बाकी protocols नहीं support करते, तो they come into the reasoning for why do we require these services. So X.25 public service might be required when traffic is bursty and delay insensitive in nature. Bursty मैंने आपको बताया था, frequently changing or not changing at all, that is called bursty. Okay, बहुत ज्यादा आना किसी चीज का या बहुत कम आना उसको हम burst कहते हैं. अगर कोई चीज normal आती है तो that's not a burst. Alright, बहुत ज्यादा आना, बहुत कम आने को हम burst कहते हैं. Okay, so first point is that when the traffic is bursty, okay, and delay insensitive, और traffic delays के लिए sensitive नहीं है, traffic delays के लिए sensitive नहीं है, so that's the first point. Second point is when reliable data transport is required, when we require reliable data transport, when reliability is a major issue.
और जब आपकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज पुअर हैं तब भी X.25 हम ज्यादा, बिकॉज वो रीट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है, पीछे हमने देखा था वो रीट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। तो अगर पुअर कम्युनिकेशन होंगी तो ज्यादा कोलिजन्स होंगी तो आपको रीट्रांसमिशन करने पड़ेंगे। जब हमें एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड व्हेन वी रिक्वायर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, ये वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं। जब हमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी चाहिए यूजिंग फाइबर ऑप्टिक एंड ऑल, so when do we require frame relay? Next point is, when do we require frame relay? फ्रेम रिले हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हेटेरोजेनियस प्रोटोकॉल सपोर्ट हमें चाहिए, मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट, सभी प्रोटोकॉल्स का मिक्सचर। ओके, जब हमें हेटेरोजेनियस प्रोटोकॉल सपोर्ट चाहिए, आईपीवी हो, एसएनएवी हो, सब कुछ हो। जब लैंड टू लैंड ट्रैफिक बहुत हाई हो जाए तब भी हमें इसकी जरूरत है। जब ट्रैफिक इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट बिट रेट वो वेरिएबल बिट रेट है, ट्रैफिक वेरिएबल बिट रेट है, वेरिएबल बिट रेट, you can see this point, the traffic is variable bit rate. When आपकी लोकेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टीपल लोकेशंस रिक्वायर इंटरकनेक्टिविटी, आपकी लोकेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपकी मल्टीपल ट्रैफिक प्रायोरिटीज हैं। ट्रैफिक प्रायोरिटीज का मतलब कि आप कहीं पर किसी ट्रैफिक को प्रायोरिटी देना चाहते हो और किसी को उसके बाद भेजना चाहते हो। ओके, जब आपको नेटवर्क मैनेजमेंट, इन बैंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज चाहिए, एसएनएमपी इज रिक्वायर्ड। जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जब आपको कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव चाहिए। ओके, तो इन सब सिनेरियोज में हम यूज करेंगे फ्रेम रिले। सो व्हेन इज एटीएम रिक्वायर्ड? ATM may be required when we have a high speed interconnectivity requirements. ओके, लैन की स्पीड आपको 100 Mbps या उससे ज्यादा की चाहिए, बिकॉज एटीएम जो है नॉर्मली वो हाई स्पीड नेटवर्क माना गया, नॉर्मली वी कंसीडर इट एज ए हाई स्पीड, एटीएम इज ए हाई स्पीड, और वो मल्टीपल क्लासेस सपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया था एटीएम अडेप्टेशन लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। Because ATM is a protocol which maximally support multiple quality of service levels, multiple service interconnections को भी support करता है, कई सारी integrated access जब आपको चाहिए हो। ओके, तो इन सब सिनेरियोज में हम ATM को यूज करते हैं। Next is when we required IP services. IP is, you know, the most commonly used internet protocol. So there are three general types of IP services. Remote IP एक होता है, okay? रिमोट आईपी नेटवर्क एक्सेस होता है, एक जनरल केबल प्राइवेट आईपी सर्विसेज होती हैं और पब्लिक आईपी सर्विसेज होती हैं। ओके, तो एक तो रिमोट एक्सेस हो गया और एक पब्लिक आईपी एक्सेस हो गया और एक प्राइवेट आईपी एक्सेस हो गया, और ये सारे कनेक्ट किसको करते हैं? पब्लिक इंटरनेट को। एंड डेडिकेटेड साइट टू साइट कनेक्टिविटी भी होती है, मल्टीपल साइट्स आईपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू, वर्चुअल वीपीएन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, दीज फॉर्म्स ऑफ आईपी सर्विसेज माइट बी रिक्वायर्ड। ये हमें कब रिक्वायर्ड होगी? जब हमारे, देखो, इंटरनेट ट्रैफिक इज नॉर्मली बस्टी, सो जब ट्रैफिक आपका बस्टी है तो आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जब आपको रिमोट एक्सेस चाहिए तब भी हम आईपी यूज करते हैं। जब हमारी कम्युनिकेशन लिंक्स पुअर हैं
तब भी हम आईपी यूज करते हैं। ओके, जब आपको ज्यादा रीट्रांसमिशंस करनी है तब भी हम आईपी यूज करते हैं। जब आप कॉस्ट ऑफ सर्विस या क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए तब भी हम आईपी यूज करते हैं। COS stands for cost of service, QoS stands for quality of service। ठीक है, जब आपको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी करनी हो वाया फाइबर ऑप्टिक टू द डिफरेंट कंट्रीज तब भी हम आईपी को यूज करते हैं। सो व्हाई डू वी रिक्वायर पब्लिक डाटा सर्विसेज? अब हमें पब्लिक, पहले हमने देखा था प्राइवेट डाटा सर्विसेज हमें क्यों चाहिए, अब हम देख रहे हैं पब्लिक डाटा सर्विसेज हमें क्यों चाहिए। जब हमें कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अपनी लो रखनी है, जब हमें एक्सेस टू रिडंडेंट एंड डाइवर्स फैसिलिटीज देना है, ओके, व्हेन वी वांट रॉबस्टनेस, बिकॉज पब्लिक में हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है तो नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड रॉबस्टनेस इज मोर। जब हमें अवेलेबिलिटी को गारंटी करना है, रिलायबिलिटी को गारंटी करना है और परफॉर्मेंस को भी इंश्योर करना है। जब हमें एक फिक्स्ड या रेकरिंग कॉस्ट चाहिए और मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट चाहिए, गेटवे सर्विसेज को हमने सपोर्ट करना है, तो इन सब सिनेरियोज में हम पब्लिक डाटा सर्विसेज यूज करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पब्लिक नेटवर्क सर्विस सिलेक्शन, पब्लिक नेटवर्किंग के लिए हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं। ये प्राइवेट लाइन भी हम पब्लिक में भी यूज करते हैं, X.25 भी हम यूज करते हैं। हमने सभी प्रोटोकॉल्स को देखा कि वो पब्लिक नेटवर्क सर्विस सिलेक्शन के सिनेरियो में कैसे यूज होंगे, उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं। तो अगर आपने प्राइवेट लाइन यूज करनी है तो ये कंडीशंस हैं, X.25 के ये पॉइंट्स हैं, ओके, फ्रेम रिले के ये पॉइंट्स हैं, एंड ATM के ये हैं, IP के ये हैं, और पब्लिक डाटा सर्विसेज के ये हैं। So that's all for this lecture today, and in the next lecture we'll see the third tabular difference between the various technologies, that means technology comparison, table number 3। इससे पहले हम technology comparison of various protocols with respect to protocol functionality number 1 हम देख चुके हैं, number 2 with respect to network functionality भी हम देख चुके हैं। Our next differences will be with respect to business functionality, so that we will see in the next tutorial. So with this I thank you all, thank you very much, happy learning.